Hello students. So today in this video we'll be going across question number 15. So we have max z equals 80x plus 120y. So this is our objective function, that is the maximization of profit. Now we have subject to x plus y less than or equal to 9. This is the first constraint. Then we have x greater than or equal to 2, y greater than or equal to 3, then 20x plus 50y less than or equal to 360, and x comma y is greater than or equal to 0. So we have, in this particular sum, we have 4 constraints. Constraint number 1, constraint number 2, constraint number 3, and this is the constraint number 4. Right? And this is the non-negative restriction, this is the objective function. Now, first of all, what we need to do, as we have been doing in all the earlier sums, x plus y equals to 9. First we'll equalize the equation, right? For finding the value of x, first we need to take let y equals 0. Therefore, putting in the equation, it becomes x equals 9. So first we have found the value of x, so it becomes a 9 comma 0. So this is the first coordinate that we have already arrived at. And similarly, if you take x as 0, your answer for y will be 9, right? So here we'll be writing it as 0 comma 9, right? Now coming on to the next one, this is the first constraint वाला answer. Say for second constraint we have x equals to 2. तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी अपने को x एक्सिस पे 2 वैल्यू मिल चुका है. इसका मतलब c कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2, 0. ठीक है. एंड द थर्ड वन y इक्वल्स टू 3. तो यहाँ पे भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, y एक्सिस का ऑलरेडी वैल्यू दिया है, तो d पॉइंट विल बी 0, बराबर. नेक्स्ट, द लास्ट वन इज 20x plus 50y equals to 360. This is equation number 4. First what we will be doing is let y equals 0. Therefore 20x plus 50 into 0 equals 360. Therefore x equals 360 by 20, that is 2 18s are. So x का वैल्यू आ गया 18. So which will be d कोऑर्डिनेट तक हो गया अपना, e होगा ये, दिस विल बी 18 comma 0, बराबर. और यहीं पे हम क्या करेंगे, x को हम लोग 0 लेने वाले हैं, बराबर. लेट x इक्वल्स 0. देयरफॉर 20 into 0 plus 50y equals 360. Therefore 50y equals 360. Therefore y equals 360 by 50. तो 5 0 कैंसिल हो गया. 5 6 are 30, 5 7 are 35.5, बराबर है. नहीं 0.5 नहीं, 35, फिर 1 बचा, फिर ये 2 हो गया, 7.2, बराबर. तो ये क्या बन गया f, एंड इसका वैल्यू क्या होगा 0,7. दैट्स इट. अभी हम इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ठीक है. So now we need to plot the points that we have already got in the last, that we need to plot in the graph. So we have A 9,0, B 0,9, then we have C 2,0, D 0,3, E 18,0, and F 0,7.2. Okay. So now because I have a small area, so I have taken the scale as 2. Okay. So here I am writing scale 1 centimeter equals 2 units on both the axes. What you can do is you can take 1 का difference in your graph book, since it will be long and you can accommodate the whole graph in that. Okay. Now the first I am going to plot 9, 0. So 9 will come between these two. So here the point will be A 9, 0. Okay. Next is B 0,9. So we have the origin here 0,9. So again 9 will be fall between your 8 and 10. So this point will be 0,9 and this will be point B. Now we need to join these two. Okay. So we have already got these two. ये हमने दोनों को join कर लिया. Now coming on to the second constraint. This was
of the first one, second one and the third one. बराबर? नहीं, I think that this was first, this was second, this is third and this is fourth. बराबर? So second वाले constraint में we have only x का value, we don't have y का value. So there will be a perpendicular line that we will be drawing from here, right? So this is the perpendicular line since this particular constraint was having only the x value and not the y value. Okay. Next is 0,3. So 0,3 will fall somewhere here and इसका जो point है वो है 2,0 और ये हो जाएगा d 0,3 और ये कैसे जाएगा? It will be a horizontal line. बराबर है? एक vertical line है x की और ये y की horizontal line जा रही है, which is a parallel line to the x axis. Okay, and this line is the this x का line is the parallel to the y axis. Okay, तो ये भी हो गया अपना point, ये भी हमने plot कर दिया. अब यहाँ पे भी अपने को एक intersection मिला है और यहाँ पे भी there is an intersection, correct? Okay, so this intersection somewhere it will be 6,3, यहाँ से 6 और यहाँ से 3 सेंटर में, और यहाँ का जो intersection point है that is 2,3. बराबर है? यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ 2,3. ओके, और यहाँ पे भी there is an intersection, let's say it is 2,7. ओके, अभी एक लास्ट बाकी है जो कंस्ट्रेंट का प्लॉटिंग करना, that is 18 on the x axis, that is E point 18,0 and y axis पे it is 0,7.2. 0,7.2. तो 7.2 let's say it will be lying somewhere here. जब आप लोग एक एक का स्केल लोगे, एक एक यूनिट्स का डिफरेंस लोगे, तो वहाँ पे 7.2 कहाँ पे आने वाला है? 7 और 8 के बीच में जो सेकेंड लाइन आएगी वो आपका 7.2 होगा. ओके, सो हियर इट इज 0,7.2 एंड दिस इज पॉइंट F. ओके, अब इसको हम जब ज्वाइन करेंगे यहाँ पे तो वापस ऑलरेडी एक और इंटरसेक्शन यहाँ पे फ्रेम होगा. बराबर है? एक और इंटरसेक्शन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो जिसको आप बाद में प्लॉट कर सकते हो. लेट्स से दिस इज 13,3. ठीक है, अब हम लोग अगर इसको इक्वेशन को जब हम लोग एरोज बनाएंगे फॉर फाइंडिंग द फिजिबल एरिया, अब यहाँ पे फिजिबल एरिया देखने के लिए अपने को पहले क्वेश्चन देखना पड़ेगा. सबसे पहले x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 9 था. बराबर है? तो जो पहला वाला कंस्ट्रेंट था ये वाला लेस देन इक्वल टू 9 था. लेस वाला जो उसमें कैसा एरो आता है? इनवर्ड एरो आता है. तो इनवर्ड एरो यहाँ पे आएगा. बराबर है? इनवर्ड एरो हो गया. सेकेंड वाला कंस्ट्रेंट क्या था? x ग्रेटर देन इक्वल टू 2. ग्रेटर था मतलब ये राइट साइड में जाने वाला है. बराबर. नेक्स्ट y था, y ग्रेटर था, वापस से ये भी बाहर की साइड जाने वाला है. y किधर है? इधर. तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगा, बाहर मतलब. बराबर. ओके, और लास्ट वाला जो कंस्ट्रेंट है वो लेस देन है, तो वो अंदर की तरफ आने वाला. अंदर मतलब ये भी लेफ्ट साइड में आएगा. अब देख के ही पता चल जाएगा, जब आप ग्राफ एक्चुअली प्लॉट करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि आपका जो फिजिबल एरिया वो ये सेक्शन में आने वाला है. बिकॉज इफ यू प्रॉपरली सी वी हैव कंस्ट्रेंट 1, 2, 3 and 4. सबका जो कॉमन एरिया वो यही है. एक पॉइंट इधर आ रहा है, एक पॉइंट इधर आ रहा है, एक कोऑर्डिनेट इधर आ रहा है, एक कोऑर्डिनेट इधर आ रहा है. बराबर है? तो यही आपका क्या है? इट इज योर फिजिबल एरिया. इसको आप शेड कर दोगे और चाहिए तो आप फिजिबल एरिया लिख सकते हो. ठीक है, जब बाद में आप पॉइंट्स देखेंगे तो फिजिबल एरिया के पॉइंट्स है M 2,3. एक पॉइंट ये आपका बनेगा. दूसरा बनेगा N 2,6.4. ठीक है, नेक्स्ट इज 3,6 लेट्स से O, और फिर P बनेगा लास्ट जो होगा 6,3. 6,3 हम देख लेते हैं यहाँ पे भी अगर आपको कुछ डाउट है. देखो एक पॉइंट ये है 2,3, इसको हम M नाम दे देते हैं. फिर यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है 6 और 8 के बीच में, तो 6.4 है ये, और ये 2 है, तो 2,6.4 इधर बन गया 2,6.4. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कहीं पे बन रहा है 6 और 3. अगर आप यहाँ देखोगे तो इधर ये 6 और ये 3, तो 6 और 3 ऑलरेडी हम मार्क करके रख चुके हैं. इसको हमने सिर्फ नाम नहीं दिया, तो ये P हो गया. और एक लास्ट पॉइंट बचा है जो 3,6 है. ठीक है, तो 3,6 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे कहीं. ठीक है,
तो जैसे 6,3 है वैसे 3,6 आ रहा है। 3 कहाँ पे आएगा? इन दोनों के बीच में, बराबर, और 6 इधर, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो 3,6 बन जाएगा, 3,6 पॉइंट बन जाएगा। तो ये चारों हमारे क्या है? फिजिबल एरियाज है। अब लेकिन हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो चारों में से कोई एक ही होगा। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे क्वेश्चन के ऊपर। मैक्स जेड इक्वल्स, क्या क्वेश्चन था अपना? 80x + 120y, 80x + 120y। अब ये जो पहली वैल्यूज है वो सब x की वैल्यू है, दूसरी वैल्यू y की वैल्यू है। हम सब सब्सटीट्यूट करेंगे क्लिक करके, x × 3 x × 2 प्लस 120 × 3 कितना हो जाएगा? 8 × 2 = 16, तो 160 हो गया, प्लस 120 × 3 12 3 36 360, तो ये 520 हो गया, बराबर 520 हो गया। नेक्स्ट 80 × 2 प्लस 120 × 6.4, इसको पूरा सब मल्टीप्लाई करके यू गेट 928। नेक्स्ट इज 80 × 3 प्लस 120 × 6, 18 3 ज़ा 24, 240, यहाँ पे साइड में मैं लिख रहा हूँ 240 प्लस 12 6 ज़ा 72, 720, तो ये हो गया 960, बराबर थर्ड वाला। फिर नेक्स्ट हो गया 80 × 6 प्लस 120 × 3, तो 8 6 ज़ा 48, 480 प्लस 12 3 ज़ा 36, 360, ये हो गया 12 13 14 और ये 840। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन क्या था? मैक्स जेड था। मैक्स जेड मतलब जो हाईएस्ट वैल्यू आएगी, तो हाईएस्ट वैल्यू तो यहीं पे आ रही है। तो द इक्वेशन मैक्स जेड 80x + 120y इज मैक्सिमाइज्ड एट O 3,6। 3 कहाँ पे आ रहा है? इधर, 6 इधर, तो 3,6 पे अपनी इक्वेशन मैक्सिमाइज हुई और हमारा मैक्सिमम वैल्यू है 960 डिग्रीज। दैट्स इट, थैंक यू।